Okay. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So we will start uh, with a with a with some recap of the concepts that we have learned in the last class. तो मैं वो recap आपके सामने फिलहाल करूँगा पहले, so that we all come on the same page and then we'll move forward. So it's a recap of whatever we have done in the last class. अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था दो टाइप के फंक्शन का. एक था चेन रूल के एप्लीकेशन से we used to, or rather what we did is that we did differentiation of function of this particular type. You remember f of g of hx, जिसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन. इस टाइप के फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया चेन रूल की मदद से. और फिर हमने डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन किया. we did differentiation of implicit functions. implicit function को हमने क्या स्टडी किया? It is any function in two variables. These two variables can be x, y, z, w, any combination of two variables where the variables cannot be separated out on two sides of the equality sign. इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं. Suppose I say x square minus xy is equal to y square. Yes, I will do x square minus xy plus y square equal to y square. Just look at this function or this equation. This is an implicit function or implicit equation. Why implicit? Because you cannot separate out, right? You cannot separate out x and y in two sides of the equality sign. मतलब आप इक्वालिटी के एक साइड में, मान लो इस साइड में और इस साइड में आप दो फंक्शन लेते हो. इस साइड में मतलब इसको आप सिंप्लीफाई करके इस साइड में ओनली x और इस साइड में ओनली y आप पुट नहीं कर सकते, राइट? लेकिन ऐसे भी कुछ फंक्शंस होंगे दो वेरिएबल्स के जहां आप सिंप्लीफाई करके एक साइड में x और दूसरे साइड में y को लेके जा सकते हो. दैट इज अ नॉन इम्प्लिसिट फंक्शन. तो हमने पढ़ा कि इम्प्लिसिट फंक्शन आपको दो वेरिएबल का दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा फाइंड dy by dx, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, राइट? तो उस केस में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. इस इक्वेशन का दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे y को वेरिएबल ट्रीट करेंगे, नॉट कांस्टेंट, राइट? एंड देन वी विल यूज ऑल द रूल्स दैट वी हैव अंडरस्टूड. ठीक है. अब मैं यहाँ पे एक सवाल कराता हूँ जस्ट एज अ प्रैक्टिस चेन रूल के एप्लीकेशन का. एंड let me ask you, why don't you do this problem first? Suppose I give you whatever I have written there. Suppose I give you x square minus xy is equal to y square. Suppose I give you this function and I ask you to find dy by dx. Can you do it please? Everyone please try it out. सब लोग ट्राई करें, सब लोग ट्राई करें. You have to find out dy by dx, right? This is what you are having and you need to find out dy by dx. कैसे करोगे? चलो सब लोग ट्राई करो, मैं भी कर रहा हूँ. Don't look at the whiteboard and don't look at the whiteboard and you do it yourself. So this is an implicit function because हम इसे differentiate कर रहे हैं with respect to x. I will do something. I will differentiate. I will not say now. I will not speak. I will start doing it in my whiteboard. Please you do it individually and then match up with the answer, and later on you can check the video.
Please check all of you have got this answer. dy by dx is equal to 2x minus y upon 2y plus x. Everyone please. सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे. Everyone please. Guys, those who are coming for the first time, I will request all of you to please go through the past videos, prepare yourself and then come to class. I always, every day I'm trying to take some recap from the last class, but you need to understand that, you know, you have to do some of your own work before you come to class so that you all are understanding whatever I'm trying to say. So ये implicit function. So this is a good recap of whatever we have done in the last class. I hope you all got this. चलिए आगे बढ़ते हैं. Sir, please can you explain the right side? Just a moment. Right side is d by dx of y square. Let me explain to you. ये देखो ध्यान से. d by dx of y square. तो d by dx of y square यहाँ पे y variable है. Y is a variable. It is not a constant. Please understand. Y is a variable. It is not a constant. So what we will do? पहले हम यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे. तो पावर रूल लगाएंगे, कुछ टू द पावर 2 है तो इट विल बिकम 2 इंटू कुछ यहाँ पे y आएगा टू द पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा. फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ y. बिकॉज ये आया कैसे हुआ होगा? y होगा, y को आपने स्क्वायर किया होगा तब जाके ये y स्क्वायर आया हुआ होगा. तो पहले आप y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर y का डिफरेंशिएशन करोगे. किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में. तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे पहला इट विल बिकम 2y टू द पावर 1 और फिर जब डिफरेंशिएशन करोगे इट विल बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x. y को डिफरेंशिएशन करोगे तो इट विल बी dy by dx ओनली. दिस विल नॉट बी जीरो. प्लीज मार्क व्हाट आई एम सेइंग. ये जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है. सर्विस, am I able to answer your query? ठीक है, good, good, fine. Now let's take a quick recap. ये देखिए मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं यहाँ पे. Suppose I take a function like y is equal to sine 3 pi t upon 2 3 pi t upon 2 minus cos of 6 pi t upon 5. इसका डिफरेंशिएशन करना है and you have to find differentiation dy by, you need to find dy by dt. चलो सब लोग करो पैरेलली. मैं भी यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में करूंगा. प्लीज अपना अपना करो और फिर लास्ट में आंसर मैच कराना. I will not speak anything now. I will not speak anything now. I will start doing. You can later on match up with your answer. I'm writing something for your better understanding.
जो लोग आज पहली बार क्लास आए हैं, प्लीज हैव सम पेशेंस एंड गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। ठीक है, आपको सब समझ में आएगा। ओके, सो योर फाइनल रिजल्ट विल बी how many of you got this answer? Please raise your hand. Gauri, this was an area where you have some questions, so I am just doing a quick recap. I want all the guys who have got the right answer. So Simran got it right. Okay. Simran got it right. Saili got it right. Harsh got it right. Good. Good. Sir, second step. Second step. Okay. Understood. Okay. Ayush is getting it right. Okay. Understood when you said second step. Somebody asked me second step. Okay. Second step means what I am trying to understand is that is this step that you are talking about? Is this step? I think Saili, you asked that question. Is this step? Saili, d by dt of cos 6 pi t by 5. तो 6 pi t by 5 के ऊपर cos का ऑपरेटर लगाएंगे एंड देन वी विल गॉट cos 6 pi t by 5. तो इसमें फर्स्ट लेयर जो होगा ऑनियन का वो होगा ये cos 6 समृद्धि. ओके, नो सर आई डिडंट. ओके समृद्धि. सेकंड स्टेप आई डिडंट गॉट. Means which step? Can you please elaborate? Can you please elaborate? Minus in final answer between the, no, it will not be minus because we have minus here. So this minus and this minus will become plus. Okay. आप cos 6 pi t by 5 कर रहे हो क्या? क्लैरिटी है ये? Okay, good. Samriddhi, I am not able to get. Can you please hold on to your questions and after the class you can ask me. I will give you a chance to. Just a moment. You can raise your hand, Samriddhi, and if you can ask the question, you know, that would be great. ठीक है? I would be able to answer. You can raise your hand, guys. No issue. This is an interactive class. So even in the video, you will be able to see that some of your friends are asking questions and they are getting rectified or cleared, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Fine. तो आपको एक क्विक रिकैप हो गया कि हमने बेसिकली कैसे डिफरेंशिएशन किया था चेन रूल की मदद से और इम्प्लिसिट फंक्शन में कैसे डिफरेंशिएशन किया गया है, राइट? आज आपको एक और असाइनमेंट मिलेगा इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर एंड चेन रूल के ऊपर. उसे आपको कंप्लीट करना है एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन सेशन ऑन दैट एज वेल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now we will go to the concept, main concept, which is the geometrical meaning. Which is the geometrical meaning of dy by dx. ध्यान से सुनिए. मैंने आपको कल important ये बात बताई थी, if you recall, कि dy by dx is nothing but it represents the slope. It represents the slope of the straight line. If we are talking about linear relationship, if we are talking about linear relationship among variable, if you are talking about linear relationships among variables. So if we have linear relationship among the variables, then the slope of the straight line is something which is dy by dx. ठीक है, अब मेरी बात सुने ध्यान से. मैंने कल आपको बताया था, उस चीज का रिकैप करूंगा. Suppose if I tell you y is equal to mx plus c, you know that this is the equation of a straight line, the simplest of all the form of the equation of straight line that you can think of. Y equal to mx plus c से हम लोग बोलते हैं slope intercept form. इसे हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c. अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड में d by dx कर दूं, if I do that, what I will get d by dx of mx plus c. So this one will become m into d by dx of x, which is 1, plus d by dx of some constant, and some constant c is an intercept which is a constant. So d by dx of constant is 0. So you got something that is dy by dx is equal to slope. ठीक है, तो geometrical meaning of dy by dx is what? Geometrical meaning of dy by dx is slope. ठीक है. Now
द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो सवाल आएगा कि dy by dx आपको स्लोप रिप्रेजेंट करता है, वेरी गुड। अभी देखिए ये जो स्लोप है, ये स्लोप इज बेसिकली, मैं दो टाइप के ग्राफ बनाता हूं आपके सामने। लेट मी गो टू अनदर स्लाइड। देखिए ध्यान से, सपोज मैं आपके लिए ये x और y, suppose I take one graph like this which is of course a straight line, और मैं एक दूसरा ग्राफ लेता हूं something like this which is a curve। ध्यान से देखिए, मैंने कल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूं। मैं ये बोला था कि इफ रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरिएबल्स वुड हैव ओनली बी लीनियर, अगर सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप होता वेरिएबल के बीच में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर रिलेशनशिप? मींस देखो, जैसे कि x और y का मैंने ये ग्राफ खींचा है, सो x एंड y दे आर द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर या डिग्री है, वेरिएबल्स की जो डिग्री है, दैट डिग्री विल बी 1, राइट? दिस इज द मीनिंग ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप लीनियर होता, तो सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप ही एग्जिस्ट करता, तो शायद, तो उस केस में हमें कैलकुलस की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान से सुनना, हमें कैलकुलस की जरूरत नहीं पड़ती और हमें शायद डिफरेंशिएशन करने की जरूरत भी नहीं आती, और हमारा सारा काम किससे हो जाता? हमारा सारा काम कोऑर्डिनेट समान लेता, हमारा सारा वर्क कोऑर्डिनेट की मदद से हो जाता। कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू ग्रास्प। देखो, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करूं, ध्यान से सुनो, इस स्ट्रेट लाइन में मैं एक छोटा सा सेगमेंट ये लेता हूं, या फिर कहीं और एक छोटा सा सेगमेंट लेता हूं, या फिर कोई तीसरी जगह पे एक छोटा सा सेगमेंट लेता हूं, आपको दिखेगा कि इन सभी सेगमेंट्स में जो स्लोप है, क्या वो कांस्टेंट है? इन सभी सेगमेंट्स में जो स्लोप है, मैं अगर स्लोप मान लो, इसको बोलता हूं ए बी, इसको बोलता हूं सी डी, इसको बोलता हूं ई एफ। तो अगर मैं स्लोप निकालूं किसी भी जगह पे, तो क्या स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ई एफ? ठीक है, और so this is the concept। और मैं ये मतलब इस लाइन के ऊपर मैं कोई भी दो पॉइंट्स के पेयर ले लूं, भले उन्हें बहुत करीब रखूं। ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूं, मैं इस स्ट्रेट लाइन में कोई भी दो पॉइंट लूं और उन्हें मैं बहुत आपस में बहुत एक दूसरे के करीब रखूं वो दो पॉइंट्स को, या फिर बहुत दूर भी रखूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा स्लोप की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। What I mean is this, कि suppose I am having this straight line, suppose I take a point here, coordinate x1 comma y1 here, and I take another coordinate far off at x2 comma y2, and I take another coordinate very close to x1 comma y1, which is suppose x3 comma y3. So what I will see is that y3 minus y1 upon x3 minus x1 is same as y2 minus y1 upon x2 minus x1. Do you agree to this? अगर स्ट्रेट लाइन होता तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं थी, मैं कोई भी दो पॉइंट लेता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, और मेरे को मेरा स्लोप मिल जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गुड गुड। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स जो वेरिएबल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप होते हैं। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करते हैं वेरिएबल्स के बीच में, वो नॉन लीनियर रिलेशंस होते हैं। और जब भी मैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरिएबल्स की बात करूं, ध्यान से इस वर्ड को सुनना, नॉन लीनियर रिलेशनशिप, इसका मतलब नॉन लीनियर रिलेशनशिप का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा? लेट मी कम बैक टू यू। व्हेन आई एम सेइंग नॉन लीनियर रिलेशनशिप,
among variables. Suppose we say the variables are x and y. Suppose we are saying the variables are x and y. So if I am saying non-linear relationship, इसका मतलब है कि x या y या दोनों की डिग्री will be any number, fraction, decimal, positive, negative, other than 1. Jasraj, it does not have to be necessarily less than 1. It may be greater than 1. It may be a decimal. It may be a fraction. It may be an integer. It can be anything other than 1. 1 छोड़ के कुछ भी हो जाए. तो ये इधर x और y दोनों के साथ होगा या किसी भी एक x और y दो वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हो, इनमें से किसी भी एक में आपने देखा कि उसकी जो डिग्री है या हाईएस्ट पावर जो है वो 1 से अलग हो गई, तो वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो जाएगा. और अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो आप समझ जाइए कि जो ग्राफ बनेगा आपका x और y के बीच में, so if I can show you this way, suppose this is x, this is y, it will be a curve. It can be any type of curve. It will be a curve. Are you understanding? मैंने दो तीन टाइप के कर्व्स बनाए. It can be any type of curve. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So what if the degree is 0? Degree is 0 means it is a constant. Good question asked. Suppose if I say x is equal to y to the power 0 plus 5. So y to the power 0 is 1, na? So it becomes x equal to 1 plus 5, that is 6. So x equal to 6 is a straight line. Again you will get a straight line. दोनों वेरिएबल जीरो नहीं हो सकते, उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा. लेकिन अगर कोई एक वेरिएबल जीरो हो जाए, कोई एक वेरिएबल का पावर जीरो हो जाए, तो it will again be an equation of straight line. Am I able to answer? It will again be the equation of a straight line. Am I clear? क्लियर है ये? अब मेरी बात सुनो ध्यान से. जब मैं कर्व लूंगा, आप सुनो, मैं एक दूसरा स्लाइड ले रहा हूं, देखो समझोगे तुम इस चीज को, ठीक है? जब मैं कर्व लूंगा, when I will take a curve, suppose between x and y, suppose I take the curve like this, ठीक है? अब इस कर्व में ध्यान से सुनना. सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूं, आज का सेशन सुपर इंटरेस्टिंग है, समझना. एक पॉइंट लेता हूं मैं x1 y1 और दूसरा एक पॉइंट लेता हूं x2 y2, ठीक है? अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप निकालूं, क्या निकालूं बेटा? स्लोप. आप सबको स्लोप निकालना आता है, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है स्लोप निकालना. क्या करते हो तुम? क्या तुम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, you will say that this length is equal to x1 and this length is equal to y1. Am I right? और सिमिलरली इस पॉइंट से तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे. आपको याद आ रहा है 10th स्टैंडर्ड? Guys, you have to answer, right? If you cannot answer, you will not learn physics. Probably you can learn some other subject but not physics. x2 और ये वाली जो कोऑर्डिनेट आई वो आई y2. Am I right? Am I right? तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, तो ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप होगा, कल लास्ट क्लास में बताया गया था, ध्यान से सुनो. I am sticking to the convention of the color that I am using. What I will get is that I will get, suppose, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Is it the slope? Is it the slope? अब मेरी बात सुनो ध्यान से. क्या मैं, ध्यान से सुनना, क्या मैंने आपको डेल का कॉन्सेप्ट बताया था? Del is equal to change in variable. I have always told you del is equal to change in variable. So can I say y2 minus y1 as del y, and can I say x2 minus x1 as del x, considering, suppose that the point is moving from this initial point to this final point
along the curve and in this particular direction, as I have shown with the help of the blue colored arrow. तो अगर 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 हम इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं जैसे कि ब्लू कलर्ड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो जो स्लोप आ रही है वो आ रही है y2 minus y1 by x2 minus x1, which I can write it as del y upon del x। अब मेरी बात सुनो, ये जो स्लोप हुआ, दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ अ सीकेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो स्लोप मैंने निकाला है इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ अ सीकेंट, एंड दिस विल रिप्रेजेंट एवरेज वैल्यू। अभी जो मैं बोल रहा हूं इसको तुम्हें नोट करना है और तुम इसे बोलते रहोगे, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सीकेंट आप समझते हो, आपने सर्कल पढ़ा हुआ है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप एक लाइन खींचोगे और वो अगर सर्कल को दो पार्ट में कट करता है तो इसको हम लोग सीकेंट बोलते हैं, यस और नो। और अगर आप सर्कल से एक पॉइंट खींचोगे विच कट्स द एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन खींचोगे विच कट्स द सर्कल ओनली एट अ सिंगल पॉइंट, देन दिस इज नोन एज अ टेंजेंट। वी नो इट, राइट? वी नो इट, राइट? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं ये फाइनल पॉइंट को, जो इसका फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, इसको अगर मैं शिफ्ट करूं इन दिस डायरेक्शन और शिफ्ट करते 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 इसको इनिशियल पॉइंट के बहुत करीब ले आऊं, कंसेप्ट समझो। अगर मैं इसको शिफ्ट करके मान लो यहां पे ले आता हूं तो मेरी स्लोप कुछ ऐसी होगी। दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द स्लोप। अगर x2 y2 को इधर ले आया तो और करीब लाया तो स्लोप मेरी ये हो जाएगी। फील करो एनिमेशन को, स्लोप मेरी ये हो जाएगी। Trigonometry is known as secant. हाँ, that is a secant, but that secant is something else. You cannot call it the secant of trigonometry same as the secant of geometry. Clear है? There was some question from one guy that secant, sec theta जब बोलते it is a secant. It is the same secant as that of geometry or what? No, it is not, right? So please उसमें confuse ना होए। अगर मैं इसको देखो फाइनल पॉइंट से मान लो मैंने पॉइंट 1 लाया, पॉइंट 2 लाया, तो पॉइंट 2 लाया तो अब मेरा स्लोप ऐसा हो गया। जैसे जैसे मैं फाइनल पॉइंट को शिफ्ट करके आगे लाता जाऊंगा, ध्यान से फील करना, ठीक है? वैसे वैसे तुम देखोगे कि ये जो सीकेंट है, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं टुवर्ड्स इनिशियल पॉइंट जा रहा हूं, ये सीकेंट मोर एंड मोर इज कन्वर्टिंग लाइक अ टेंजेंट। चमका नहीं भाई, मोर एंड मोर कन्वर्टिंग लाइक अ टेंजेंट। यस और नो? फील करो इस बात को, ये फील वाली चीज है, ये आपको फील करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं ये फाइनल पॉइंट को x2 y2 को मूव कराता जाऊं टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट, सो आई विल गेट अ केस व्हेन, look at this, suppose this was the initial point, I will get a case when the final point will become so close to the initial point that I have to define something which is known as the tangent। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो एक सीकेंट टेंजेंट कब बनता है? जब फाइनल पॉइंट को जो दो कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करते हैं सीकेंट का स्लोप, अगर वो दो कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के इतने करीब हो जाएं कि y2 minus y1 by x2 minus x1 जब हम निकालें तो वो ऑलमोस्ट उस पॉइंट पे, जैसे कि इस पॉइंट पे जो मैंने ये लाइन खींचा इनको ज्वाइन करने वाला, दिस बिकम्स द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, राइट? तो बेसिकली जो स्लोप आपने अभी देखा, ठीक है, जो इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट को मिला के जो स्लोप निकाला गया था विच इज del y by del x, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ अ सीकेंट। एंड द स्लोप ऑफ अ सीकेंट रिप्रेजेंट्स व्हाट? एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी और एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। But isn't tangent intersecting at one point only? Yes, it is intersecting at one point only, beta, but that's what I'm saying, I am bringing the final point so close to the initial point that it is not exactly the initial point, but it is pretty much close. So if it is pretty much close, then I can say that that particular slope will be the slope of the tangent at that point, almost, right? Almost. अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 है तो ये शायद होगा 1.9999 डॉट 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 और लास्ट में बहुत बार एंड में 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
You understanding? This is something means we are trying to bring it as close as possible to the initial point. Which point we are trying to bring as close as possible? The final point, right? So what we are saying is that जब हम कोई भी दो पॉइंट कर्व में लेंगे, ध्यान सुनना, कोई भी दो पॉइंट जब हम कर्व में लेंगे तो उस केस में जब हम स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप होगा del y by del x and that will represent me the average value which is the slope of a secant. That will represent the average value of one variable with respect to other. इसको हम लोग average value भी बोलते हैं. Change of one variable with respect to other. How y is changing with respect to x, we will get that, but that will represent average value. And when I will bring this final point pretty close to the initial point, then mark what I'm saying. When I'm bringing the final point pretty close to the initial point, then this del y by del x will transform itself into dy by dx. Oh हो, क्या मेरी बात समझ में आई है? क्यों dy सर? क्योंकि इनिशियल पॉइंट का y1 कोऑर्डिनेट और फाइनल पॉइंट जब प्रीटी क्लोज हो गया, क्या उन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना छोटा हो गया, क्या हम उसे dy लिख सकते हैं? पहले वो छोटा नहीं था, इसीलिए उसे del y लिख रहे थे, पर अब वो इतना छोटा हो गया कि वही del y किस में बदल गया? dy में. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? सो अब सुनो, ये जो del y by del x है, इसको हम लोग बोलते हैं दे रिप्रेजेंट एवरेज वैल्यू ऑफ one variable's change with respect to other, whereas this dy by dx represents instantaneous values. ये आपके लिए एक नया वर्ड है, instantaneous. Instantaneous मतलब at a given instant. Why we are saying at a given instant or at a given coordinate? Because the second point is pretty much close to the first point. Are you understanding it? क्या आपको समझ आ रहा है? क्या अंग्रेजी ज्यादा हो रही है? क्या आपको समझ आ रहा है? Guys, I need a response, or I will repeat it. I have no issues, but you need to get it. First pass has to be absolutely correct. You need to get it right? You need to get it absolutely right. Now listen. तो बेसिकली मैं ये आपको ये बोलना चाहता था कि आपको ये बात पहली बात मैं इसको अगर सम अप करूं तो मेरे पास देखो, मेरे पास ध्यान से सुनना, मेरे पास कोई भी अगर ग्राफ होगा, सुनना मेरी बात, देखो तुम्हें कितना मजा आएगा. कोई भी अगर मेरे पास ग्राफ है x और y. अच्छा, एक और बात, अच्छी बात, देखो जब हम फिजिक्स की बात करेंगे ना, when we are talking in parlance of physics, this x can be any physical variable and this y will be another physical variable. ये physical variables होंगे, जैसे कि y हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, x हो सकता है टाइम, y हो सकता है वेलोसिटी, x होता है टाइम. आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स, याद है आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे दिखेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. यू रिमेंबर? तो जब तुम फिजिक्स करोगे ना बेटा जी, तो उस टाइम पे याद रखना कि तुम्हारा y एक्सिस और x एक्सिस में जो भी क्वांटिटीज रहेंगी, they will just not be numbers only, they will be representing some or the other physical quantities. मेरी बात समझ में आ रही है? और जब मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल when I am saying del y by del x or I am saying dy by dx, you should understand that this is representing what? This is representing change of one variable which is representing or which is being represented along the y axis upon change of other variable which is represented along the x axis. And dy by dx similarly, it is also the change along the y axis variable upon change along the x axis variable. क्या मेरी बात समझ में आई है? Good. अब देखो, तो फिजिक्स में x और y में हमारे पास सिर्फ नंबर्स नहीं होंगे, we will be having some or the other variables to deal with, right? Some or the other variables, right? अब ये कैसे होंगे, क्या होंगे, अपने को समझ में वो आएगा. ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से. देखो, अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं, स्ट्रेट लाइन में मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं और एक पॉइंट कहीं पे भी लेता हूं, इनफाइनाइट दूरी पे लेता हूं. सपोज दिस इज x1, y1 and this is x2, y2 at very far distance. और अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट लेता हूं x3, y3 which is pretty much close, तो मुझे पता है कि इस केस में मेरा जो एवरेज वैल्यू आएगा del y by del x, that will be same as dy by dx.
मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको समझ में आया? Why I am saying del y by del x will be equal to dy by dx? Because अगर मैं ये दो वेरिएबल्स को, दो कोऑर्डिनेट्स को, अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे दो कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ वेरी फार अपार्ट, तो वेरी फार अपार्ट भी अगर मैं लेता हूँ तो ध्यान से देखना, वेरी फार अपार्ट लूंगा तो y2 minus y1 x2 minus x1 will represent the average change और एवरेज वैल्यू, और अगर मैं इसको मूव करा के x1 y1 के प्रिटी क्लोज ले आऊं तब भी जो मुझे स्लोप मिलेगा क्या वो दोनों सेम होगा? मतलब अगर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होता तो del y by del x and dy by dx would have been the same। और इसीलिए मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि अगर सब रिलेशनशिप लीनियर होते ना तो तुम्हें शायद dy by dx की जरूरत ही नहीं पड़ती। यस और नो? क्या जरूरत थी इसकी निकालने की? जरूरत थी क्या? नहीं, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड 10th में पढ़ लिया था। तो del y by del x स्लोप निकालना बहुत आसान था एंड वी वुड हैव गॉट आवर आंसर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। दिक्कत क्यों आई सुनना, दिक्कत क्यों आई सुनना। दिक्कत इसलिए आई क्योंकि क्योंकि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप आया वो कर्व टाइप का आया। मेजॉरिटी ऑफ द रिलेशनशिप लीनियर तो था ही नहीं, कर्व था। और जब कर्व की बात करूं, सपोज मैंने एक कोऑर्डिनेट लिया x1, y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट लिया x2, y2 और एक तीसरा कोऑर्डिनेट लिया x3, y3 और एक कोऑर्डिनेट लिया इसके एकदम करीब सपोज x4, y4। तो इस केस में अगर मैं y2 minus y1 by x2 minus x1 करूं, मैं y3 minus y1 by x3 minus x1 करूं, या फिर मैं y4 minus y1 by x4 minus x1 करूं, तो मुझे दिखा कि ये तीनों सेम नहीं थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तीनों का जो स्लोप था ये सेम नहीं था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर दे सेम? नो, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। तो इस केस में मुझे ये दिखा कि del y by del x is not equal to dy by dx, where del y by del x was emphasizing more on the average, dy by dx was representing instantaneous। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? और एक अच्छी चीज सुनो, और एक अच्छी चीज सुनो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ये सब चीजें खटाखट करने लगोगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको और एक बात सुनो, देखो तुम अगर दूसरी एक चीज अच्छे से गौर करोगे ना, वो तुमको एक चीज समझ में आएगी, वो ये है कि सपोज सपोज ध्यान से सुनना, मैं एक और लेता हूँ, ध्यान सुनना। सपोज दिस इज माई कोऑर्डिनेट, ये मेरा ग्राफ है। सपोज मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, उसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक दूसरी पॉइंट ली यहाँ पे, विच कोऑर्डिनेट इज सपोज x2, y2। अगर मैं इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को येलो कलर से दिखा रहा हूँ, डॉटेड लाइन से, जो एवरेज स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, इनको ज्वाइन करने वाले लाइन को ध्यान से देखो, तुमको दिखेगा कि इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये एंड पॉइंट्स को छोड़ के कहीं पे भी ओरिजिनल कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। सब गायब हो गए, सबके दिमाग एकदम बस्ट हो गए। क्या बोले सर, समझ नहीं आया। मैं सुन 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 ध्यान से, मैं क्या बोल, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तू x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन कर देना एक इमेजिनरी लाइन से, इसी का तो स्लोप निकाल रहा है भाई तू। अब इसको फील कर, अगर तू इसका स्लोप निकाल रहा है, सुनना अभी, सुनना ध्यान से, तो तू देखेगा कि ये जो मैंने रेड कलर से जो लाइन को हाईलाइट किया है, ये लाइन सिर्फ एंड पॉइंट्स को छोड़ के इस लाइन का कोई भी पार्ट एक्चुअल कर्व में लाई करता ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक्चुअल कर्व में वो लाई कर ही नहीं रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा, अब मेरी बात सुन, जैसे जैसे मैं x2 y2 को करीब लाता जाऊंगा x1 y1, मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, suppose this is x3 y3, pretty close to x1 y1 but not exactly on x1 y1। इस केस में तू देखेगा कि इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, क्या मैं बोल सकता हूं कि इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ऑलमोस्ट इस कर्व में लाई कर रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ऑलमोस्ट इस कर्व में लाई कर रहा है? यस और नो? सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जो del y by del x है, it is representing average only, and it is not at all representing the slope of the curve. Mark my words. Del y by del x is average only, and it is not at all representing the slope of the curve. But when I bring x2 y2 pretty close to x1 y1, means now I am talking about x3 comma y3 when it is pretty close to x1 comma y1, and at that point of at that instance, if we try to find out the slope, then this slope, which is equal to y3 by y3 minus y1 upon x3 minus x1, this is obviously del y by del x, but this was found to be equal to dy by dx, and this dy by dx is the actual slope of the curve. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो del y by del x है, ये del y by del x सिर्फ एवरेज दिखाता है, ये एक्चुअल कर्व में क्या वेरिएशन हो रहा है इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, which is being indicated by this particular line. आपको समझ में आ रहा है? और अगर ये जो दो पॉइंट्स जो हमने सिलेक्ट किया है स्लोप निकालने के लिए, अगर वो एक दूसरे के प्रिटी क्लोज हो, तो उस केस में जो del y by del x है वही dy by dx है, means it is actual slope of the curve that we are talking about. अब मैं आपको याद दिलाऊंगा, याद रखो, तुम मुझे एक बात बताना, तुमने ये स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा हुआ है, सुनना ध्यान से एप्लीकेशन, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तुम औरंगाबाद से जलगांव गए, तुम औरंगाबाद से जलगांव गए एक ट्रैवल्स में, तुम टैक्सी वैक्सी कुछ भी बुक करके तुम गए। सपोज तुमको औरंगाबाद से जलगांव जाने में, आर्यमान listen, when I am saying listen to me carefully, your questions will get addressed, right? When I speak, you just listen, because you are not in front of me, your mind is going where I am not able to keep a track on it, right? So please, आप जब मैं बोल रहा हूँ आप सुनिए, उसके बाद जब मैं पूछूं आपके कोई डाउट्स है तब आप अपने क्वेश्चन रेज कीजिए प्लीज, अदरवाइज आप अपने सवाल पे उलझे रहोगे और मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ नहीं पाओगे। प्लीज ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ कि सपोज आप औरंगाबाद से जलगांव जा रहे हो, औरंगाबाद से जलगांव जाना मान लो 400 किलोमीटर है, एंड यू टुक, सुनो, औरंगाबाद टू जलगांव, मान लो ये 400 किलोमीटर है, मुझे पता नहीं कितना किलोमीटर है, मान लो 400 किलोमीटर, एंड यू टुक 4 आवर्स, स्ट्रेट 4 आवर्स, आपको 4 घंटे लगे गाड़ी में, आप सो गए 6 बजे, आप सो गए गाड़ी के अंदर, और या फिर आप 6 बजे गाड़ी के अंदर बैठे, 10 बजे आप जलगांव पहुंच गए, ठीक है? तो आप एक चीज बोलते हो जिसे हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 400 अपॉन 4, आप क्या बोलते हो? 100 किलोमीटर पर आवर इज माई एवरेज स्पीड। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम क्या हुआ? सपोज आपने इस जो भी गाड़ी के ऊपर आप बैठे थे, उस गाड़ी के स्पीडोमीटर के ऊपर आपने कंटिन्यूअसली नजर टकटकी लगा के नजर रखी हुई थी, और आपको ये दिख रहा था, या फिर आपने पूरी टकटकी नजर लगा के रखी हुई थी उस स्पीडोमीटर के ऊपर, और आपने जब ये एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर आया, तो आपने बोला ओ माय गॉड, मैं पूरे 4 घंटे मैंने अपनी नजर स्पीडोमीटर पे लगाई हुई थी, लेकिन कभी भी मुझे 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मिला ही नहीं। मुझे 120 मिला था, 130 मिला था, 80 मिला था, 75 मिला था, 90 मिला था, बट 100 तो मुझे कभी मिला ही नहीं। So don't you think that this average is a misleading figure? Because this average is just giving you, what is the meaning of this average? कि मान लो आप गाड़ी पे बैठे, गाड़ी चली एक कांस्टेंट स्पीड से, रास्ते में बम्पर आया, पेड़ आया, बकरी आई, गाय आई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबको उड़ा के गाड़ी चली गई, 400 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रैवल की, कोई कहीं पे कोई इंटरप्शन नहीं, 100 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आई। तो एवरेज स्पीड इज अ मिसलीडिंग क्वांटिटी।
So you now need to understand ki what does the speedometer tells you. Speedometer tells you the exact speed at any instant. So speedometer gives you the reading which is this instantaneous speed or velocity. Are you understanding this? किसी भी इंस्टेंट पे क्या वैल्यू है वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्पीडोमीटर दिखाता है. क्या मेरी बात समझ में आई है? एवरेज इज मिसलीडिंग एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आर ऑलवेज ऑफ हेल्प टू अस. इसीलिए फिजिक्स में हम ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालने में एंड नॉट ऑन द एवरेज वैल्यूज बिकॉज एवरेज आर ऑलवेज मिसलीडिंग. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एवरेजेस आर ऑलवेज मिसलीडिंग. दे विल नॉट गिव यू अ करेक्ट पिक्चर एज टू व्हाट हैपेंड. सोचो ना 400 किलोमीटर की जर्नी थी, आपको 4 घंटे लगे, आपने बोला 100 किलोमीटर प्रति घंटा. इसका मतलब ये है कि गाड़ी स्टार्ट होते साथ ही 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ ली और वो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही चलेगी पूरे ट्रैक में. कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में कौन आया, जो आया उसको उड़ाते हुए जाएगी गाड़ी. कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या ये फिजिकली पॉसिबल है या फिर ह्यूमनली फिजिबल है? नहीं. तो इसीलिए एवरेज स्पीड आर मिसलीडिंग और एवरेज anything average is misleading and that is why we need to go for the concept of instantaneous. इसीलिए dy by dx का इन्वेंशन करना पड़ा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और dy by dx किस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है. क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लियर है ये? अब मेरी बात सुनो ध्यान से. मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी. ये जो del y by del x है, आई होप यू गॉट दिस. ये जो del y by del x है ये dy by dx कब बनता है? del y by del x dy by dx कब बनेगा? कब कब कब? when del x tends to 0 और del y tends to 0. क्यों tends to 0 बोला? because del y is difference in two coordinates. हमने लास्ट स्लाइड में देखा था डिफरेंस इन टू कोऑर्डिनेट्स. अगर दो कोऑर्डिनेट्स बहुत प्रीटी क्लोज हैं, क्या दोनों के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट dy हो जाएगा एंड dy इज प्रीटी स्मॉल. मैंने आपको बताया था dy क्या होता है, याद करो. मैंने बताया था सेलो टेप चिपका देना है. तो सेलो टेप चिपकाने के कारण जितना भी लेंथ में इंक्रीज होगा दैट इज लाइक dy. आप मकड़ी का जाला, आप समझ रहे हो कितना थिन होता है मकड़ी का जाला, स्पाइडर्स वेब, आप समझ पा रहे हो? उस मकड़ी के जाला इज द थिनेस्ट थिंग दैट यू कैन इमेजिन, राइट? जो आपने देखा होगा प्रोबेबली with your eyes. तो वो मकड़ी का जाला जो है, वो मकड़ी का जाला जितना थिन होता है ना, उतना थिन, उससे भी काफी और कम is something dy that we are saying. Are you understanding this? So del y by del x कब बनेगा dy by dx? Important है. del y by del x dy by dx तब बनेगा when del x tends to 0 and del y tends to 0. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? And that is what I tried to explain you with the help of by moving the coordinates x2 comma y2 in this direction to a point x3 comma y3 such that x3 comma y3 is pretty close to x1 comma y1. Am I making sense? क्या मेरी बात समझ आई है? Am I making sense? How can del x become 0? Del x becomes 0 only when the 2 points coincides exactly. मतलब मैंने x3 y3 को उठा के x1 y के ऊपर ही डाल दिया, तभी आपकी del x 0 होगी. एग्जैक्टली 0. बट एग्जैक्टली 0 करने का अपना कोई मकसद नहीं है. हमें दो पॉइंट से हमें स्लोप निकालना है बिकॉज स्लोप गिव्स यू द dy by dx. dy by dx स्लोप ही है, लेकिन तब है जब दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये लैंग्वेज आपको अभी मास्टर करना पड़ेगा. जसराज, गुड. अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो, देखो तुम्हें समझ आएगी. So जो del y by del x है, del x tends to 0, del y tends to 0, then this will become dy by dx. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सुनो, जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में या लास्ट स्लाइड्स में, फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन. अगर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होगा तो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप के लिए del y by del x एंड dy by dx दोनों सेम है और शायद उसके लिए कोऑर्डिनेट से ही बात बन जाती. लेकिन अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स आए तो उस केस में del y by del x and dy by dx will represent the slope at this point and del y by del x can be any other point. तो ये secant का slope है. del y by del x is representing the slope of secant, means we are talking about average, whereas dy by dx is representing what? dy is representing the slope of tangent, means
it is the exact relationship between y and x, it is the exact relationship between y and x which is existing in the curve. और हमें कौन सा रिलेशनशिप चाहिए? हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप चाहिए, हमें एवरेज से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज़ एवरेजेस आर मिसलीडिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है ये? गुड, आओ आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो आपको स्लोप का मतलब समझ में आया। स्लोप से आप क्या समझे? स्लोप इज dy by dx और del by dx। अपने मन में रिपीट करो। आप घर में बैठे हुए कोई बात नहीं, मेरे साथ बोलते चलो, सो दैट घर वालों को भी लगे कि आप आप पढ़ रहे हो। मेरे साथ बोलना कि व्हाट इज, सबसे पहले स्लोप कॉन्सेप्ट सुनो। स्लोप, स्लोप को लिख सकते हैं y2 minus y1 by x2 minus x1, या फिर इसको लिख सकते हैं tan थीटा। याद है, याद है, याद है, मैंने ये बोला नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। स्लोप कैन बी y2 minus y1 by x2 minus x1 या tan थीटा या del y by del x या dy by dx। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें से कुछ भी लिख सकते हो आप, राइट? कुछ भी लिख सकते हो। अगर रिलेशनशिप लीनियर है तो इन सबका रिजल्ट सेम है, लेकिन अगर रिलेशनशिप नॉन लीनियर है तो फिर इन सभी में से कौन सा आपको सबसे करेक्ट आंसर देगा स्लोप का? नहीं आया समझ? अगर रिलेशनशिप नॉन लीनियर है तो इनमें से कौन सा आपको सबसे करेक्ट आंसर देगा स्लोप का? वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड यू टू ऑल टू लर्न। तो सबसे मुझे स्लोप मिलेगा, और अगर लीनियर रिलेशनशिप या स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, ये सबकी वैल्यू सेम रहेगी, सबकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है? लेकिन अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप में स्लोप विल बी गिवन बाय dy by dx। तो हमारा दिमाग खटका, तो हमारा दिमाग ऐसे चला, हमारा दिमाग में इस तरीके का एल्गोरिथम बना कि स्लोप इज dy by dx या del y by del x। del y by del x स्लोप देगा फॉर लीनियर रिलेशनशिप, and dy by dx will give me the slope for both linear and non-linear relationship। इसका मतलब लोगों ने बोला अच्छा बेटा, इसका मतलब अगर मैं dy by dx कर लूं तो dy by dx तो फिर लीनियर और नॉन लीनियर दोनों टाइप के ग्राफ्स के लिए एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब which method is more powerful, कोऑर्डिनेट या कैलकुलस? अब आ रहे हो तुम, अब आ रहा है ऊंट पहाड़ के नीचे, कौन सा मेथड ज्यादा पावरफुल है? यस, and that is why we need to learn calculus। क्या मेरी बात समझ आई है? Am I making sense? Am I making sense? This is a very difficult topic because you have never studied anything like this earlier, and that's why I'm introducing you to this topic। My objective is to make you start thinking along these lines, because तभी आपसे सवाल बनेगा। अब फिर से सुनो, slope is given by dy by dx, slope is given by del y by del x। del y by del x will give me the slope only for linear relationship, क्योंकि del y by del x and dy by dx is same as for linear relationship। तो del y by dx मुझे सिर्फ linear relationship में काम देगा, लेकिन जब मैं dy by dx करूंगा तो linear नॉन linear दोनों के लिए काम देगा। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि अच्छा बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि कैलकुलस ज्यादा पावरफुल है as compared to coordinate, and that is why the entire world shifted to calculus, and that is where the importance of calculus starts। And that's it, because most of the relationships are non-linear, which you will find among physical quantities। most of them are non-linear। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अगर non-linear relationships है तो हमारे लिए रामबाण या फिर हमारे लिए सबसे अचूक इलाज है calculus, and with the help of calculus we will find dy by dx and we will be able to solve the problems। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सुन, देख कितना मजा आएगा तेरे को। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ सर, ऐसे में I have to create a new whiteboard for you, just a moment। इसका मतलब ये हुआ सर, ध्यान सुनना, मजा आएगा तुम्हें, बहुत मजा आएगा, सुनना ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ सर कि suppose I tell you, suppose I say that this is my time axis and suppose I say this is my displacement axis। तो अगर मैं displacement और time का एक relationship बनाता हूँ, s is equal to 2t plus 4 suppose sir। ओके, सबसे पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, s इज इक्वल टू 2t plus 4। इस इक्वेशन को ग्राफ में कैसे लिखोगे ये बताना है, मैंने आपको ये चीज बताई हुई थी। इसको करने का तरीका, सबसे पहले आप वेरिएबल्स को इक्वेशन के एक साइड में ले आए और जो कांस्टेंट है उसको 1 करने के लिए 4 से डिवाइड कर दे दोनों साइड को, तो ये आ जाएगा s/4 प्लस t/-2 इज इक्वल टू 1। तो s की वैल्यू आई 4 और t की वैल्यू आई -2।
तो -2 का t का कोई मतलब नहीं होगा, राइट? एम आई राइट? -t कैनॉट बी इन नेगेटिव, तो -2 का कोई मतलब नहीं होगा. तो लेट मी चेंज इट अ बिट. सपोज लेट मी राइट इट एज +4 -2t. So it will become s plus 2t by 4 is equal to 4 by 4, which is s by 4 plus t by 2 is equal to 1. तो यहाँ पे आ जाएगा 2,0. आपको 2 पॉइंट मिल गए क्या बेटा जी? 2 पॉइंट मिल गए, तो इनको ज्वाइन करने वाली एक स्मूथ लाइन आप ज्वाइन बना दीजिए. सो दिस वन विल बी योर इक्वेशन s इक्वल टू -2t प्लस 4. क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस विल बी द इक्वेशन s इज इक्वल टू -2t प्लस 4. क्या क्लैरिटी है ये? कभी भी आपको कोई ग्राफ दिया रहे और सॉरी इक्वेशन दिया रहे और उससे ग्राफ बनाने का हो, तो ऑलवेज गो एंड फॉलो द इंटरसेप्ट मेथड ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इंटरसेप्ट मेथड से आपको तुरंत विद इन नो टाइम विल बी एबल टू प्लॉट द ग्राफ. ठीक है? s इक्वल टू -2t प्लस 4, s प्लस 2t इज इक्वल टू 4. दोनों साइड 4 से डिवाइड करो, बिकॉज आपको पता है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1. हाँ या ना? इधर 1 लाना है आपको, इंटर मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट 1 लाने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ा. एंड देन यू सॉ कि व्हाट इज द s इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज द t इंटरसेप्ट, और वो वैल्यूज आपने प्लॉट कर दी और आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल गया. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ध्यान से सुनो, s इक्वल टू -2t प्लस 4. अब मेरी बात सुनो ध्यान से. देखो, अगर मैं यहाँ पे ds by dt करूं, what is ds by dt? ds by dt will be d by dt of, feel करना, d by dt of -2t plus 4, which I will write it as d by dt of -2t plus d by dt of 4. d by dt of 4 is a constant, so d by dt of 4 is 0, and d by dt of -2t is -2. So you got ds by dt as -2. Now the concept is this, that because it is physics, so in x and y axis you do not have just mere numbers, but we have physical quantities. Can you tell me in this case what does the slope represents? बोलना पड़ेगा. What does the slope represent? Slope of -2 represent what? ds by dt, displacement, meter per second. Velocity, very good, that's what I wanted you to ask. It will represent what? Velocity. तो हमें, मैंने ये बात लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. जब आप स्लोप निकालोगे किसी भी फिजिक्स में, कोई भी दो वेरिएबल का ds by dt करोगे जब आप, या dy by dx करोगे, y and x stands for any variable. समझो इस चीज को. When I am saying dy by dx is slope, ये y और x can it be any variables? कोई भी वेरिएबल 1 होगा फिजिकल क्वांटिटी, और ये कोई भी वेरिएबल 2 होगा फिजिकल क्वांटिटी. तो आपको dy by dx हमेशा एक यूनिट के साथ मिल सकता है फिजिक्स में. जैसे कि यहाँ पे ds by dt is representing meter per second in a given direction. So this ds by dt will represent what? This ds by dt will represent velocity. Are you understanding what I am trying to say? क्या ये क्लियर है सबको? पक्का? नो इश्यू. अब मेरी बात सुन ध्यान से. ये ds by dt तेरे को कितना दिया? -2. अब मेरी बात सुन, अब तू स्लोप निकाल, मतलब del s by del t कर. del s by del t मतलब s2 minus s1 by t2 minus t1 कर. चल करके दिखा. s2 मान ले, इसको 2,0 को s2, t2 है, राइट, और ये s1, t1 x1 सॉरी t1, ये सॉरी ये है t1, s1, और ये है t2, s2. तो s2 minus s1 कर, will it be 4 minus 0 and t2 minus t1 0 minus 2. हो ये भी -2 आ रहा है, -2 मीटर पर सेकेंड. क्या मैंने आपको बताया था कि अगर लीनियर रिलेशनशिप हो तो ds by dt and del s by dt will represent the same value. Yes or no? चमक रहा है क्या? क्या चमका है ये अच्छे से? Everybody got it? Everybody got it? अब मेरी बात सुन ध्यान से. अब मेरी बात सुन ध्यान से. Suppose if I tell you, feel करना. Suppose you are telling this is displacement, this is time, right? Displacement is in meters and time is saying this is displacement, right? Suppose if I tell you that my graph is something like this. Displacement is equal to 2t square. Suppose I tell you displacement is equal to 2t square. This is what is the graph that I am having. ठीक है, मैं इसका प्लॉट करना भी सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में. उसी के ऊपर बात होगी कि प्लॉटिंग कैसे की जाए एंड ऑल दैट, मैक्सिमम मिनिमम वी विल सी. तो आपको मैंने, अगर आपको मैथमेटिकल टूल किट याद है, मैंने आपको बताया था दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. सो अगर मैं y और x के टर्म में लिखूं तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. क्या मैंने आपको बोला था कि दिस इज अ पैराबोला? अगर डिग्री 2 हो, इज इट अ पैराबोला? और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखने के लिए बोला था, क्या ये कोएफिशिएंट प्लस है? तो कोएफिशिएंट अगर प्लस है तो ये पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला है. क्या मेरी बात समझ में आई है? तो योर पैराबोला, इट इज अ पैराबोला, इट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस.
समथिंग लाइक दिस इट विल गो, इट इज अ पैराबोला, समथिंग लाइक दिस। आपने देखा होगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो किए थे दे वर पैराबोलाज ओनली, तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो अब जब ऐसा ग्राफ आ गया तो अभी हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये ग्राफ कैसा है, नॉन लीनियर है। ये ग्राफ कैसा है, नॉन लीनियर है। तो अगर ये ग्राफ नॉन लीनियर है तो अपने को समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो मैं किस मेथड से जाऊं, क्या मैं डेल वाई बाई डेल एक्स करूं या डी वाई बाई डी एक्स करूं, आपको बताना है कौन सा सही अप्रोच है मेरे लिए। बोलो बोलो बोलो, डी वाई बाई डी एक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। तो अब मुझे बताओ डेल वाई बाई डेल एक्स, क्या y की जगह पे मेरे पास है s और x की जगह पे मेरे पास है t, yes or no? That means what I need to do? Do I need to do ds by dt? Do I need to do ds by dt? Very good. ये देख ध्यान से, s is equal to 2t square। क्या इसी दिन के लिए मैं तेरे को डिफरेंशिएशन सिखाया था? क्या तू ds by dt कर सकता है? Everyone यार, यार कम रेस्पॉन्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों के रेस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। पूजा, समदिशा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? रेस्पॉन्स आना बंद हो गया है, रेस्पॉन्स आना बंद हो गया है। रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आई एम नॉट गेटिंग द कॉन्फिडेंस। यस, नो, मे बी, प्लीज रेस्पॉन्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सो अगर मैं डीएस बाई डी टी करूं, क्या इसी दिन के लिए मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, क्या तुम डीएस बाई डी टी कर सकते हो? यस, बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल है? क्या 2 को बाहर निकाल लें, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2t, क्या ये 4t आ जाएगा? सो यू विल गेट 4t एज द स्लोप। एंड व्हाट इज द स्लोप? What is the slope? What does the slope represent? SP कर्व में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, तुम बताओगे, खुद बताओगे, क्या तुम्हें लगता है कि इस ग्राफ के हिसाब से, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, क्या तुम्हें लगता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बोलो बोलो बोलो, अकल लगाओ। वेरिएबल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाई यू आर सेइंग सो? व्हाई यू आर सेइंग सो इट्स वेरिएबल? एनी आंसर? व्हाई वेरिएबल? व्हाई वेरिएबल? यस यस, व्हाई वेरिएबल? बताओ बताओ। You need to type in. Due to the graph changing, velocity is increasing, change in direction, it is a curve. Okay, okay, now listen to me. Good, you all are there, you all are there, but you are not bang on. Line is a curve. Okay, taken. Instantaneous change. Okay, बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं। अब मेरी बात सुन, ध्यान से सुन, ध्यान सुन। एकदम सिंपल मैथ्स बता रहा हूँ। देख, जब मैंने ds by dt किया, मेरा ये आंसर देख, क्या मेरा आंसर आ रहा है 4t? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन सेंस। जब ds by dt 4t आया तो मुझे समझना चाहिए, अच्छा बेटा मतलब ds by dt तो टाइम के ऊपर डिपेंड हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ds by dt तो कांस्टेंट नहीं है, तो टाइम के ऊपर डिपेंड हो रहा है। इसका मतलब जब अलग अलग टाइम में लूंगा, अलग अलग टाइम में लूंगा, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, बिकॉज यहाँ पे t फीचर हो रहा है, तो क्या अलग अलग टाइम पे जो मुझे स्लोप मिलेगी, क्या वो अलग अलग होगी? क्या आपको समझ आया है? क्या अलग अलग टाइम पे जो मुझे स्लोप मिलेगी, क्या वो अलग अलग होगी? इसीलिए 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 नॉन लिनियर रिलेशनशिप में ds by dt का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ds by dt ही आपको बताता है, इस बात को प्रूव करता है कि भाई साहब अलग अलग जगह, अलग अलग टाइम पे, अगर मैं ds by dt की बात कर रहा हूं, अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग है। तो आप अगर यहां से औरंगाबाद से जलगांव गए और मान लो आपने ये ग्राफ लिया है और मैं बोलता हूं कि 400 किलोमीटर है और आपने 4 घंटे लिए हैं, तो आप अगर बोलोगे कि जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर, इट इज डैम रॉन्ग मैन। बिकॉज आप 100 किलोमीटर पर आवर बोलने का मतलब क्या? इट्स एन एवरेज वैल्यू, मतलब ओवर द जर्नी ऑफ 4 आवर्स, कंप्लीट 4 आवर्स। क्या आप बोल रहे हो कि कुछ भी हो जाए उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से चेंज हो ही नहीं सकती? मतलब आप ऐसा मान लो कि उसके पास एक बटन है गाड़ी में, जैसे वो बटन को दबाया 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है, आगे कुछ भी आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, 100 किलोमीटर मेंटेन करेगा, और बाद में जैसे जलगांव पहुंचे बटन बंद कर दो, गाड़ी रुक जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? बट that is physically impossible. So that is why ds by dt has its meaning, it has its importance. तो कल हम लोग इसी सेशन को और आगे बढ़ाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। आज के लिए इतना ही काम है, प्लस मैं आपको आज एक असाइनमेंट शीट भेजने वाला हूँ। डिफरेंशिएशन के 2 असाइनमेंट शीट्स के ऊपर वर्क करें और वेक्टर्स की अपनी वर्किंग स्टार्ट रखें, वेक्टर्स के ऊपर भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।